Hello student, welcome back to my channel. So today we will discuss here about the next topic of the chapter, magnetism and matter. So in this video we will discuss here about the earth magnetic field and cause of earth magnetic field, and after that the magnetic elements. One by one I will discuss the all things in front of you. So before this I will write about the theoretical part, which is earth magnetic field, is in front of you. So you will write this part in your notebook and revise it 2 or 3 times so that you can easily explain the earth magnetic field and the reason of earth magnetic field, or you can say cause of earth magnetic field. So dear student, let's start the topic with the heading of magnetic field of earth. So I have written the all information about the magnetic field of earth. This is a theoretical part, so I have written the all things in front of you before, because it will take a time to write and other things. So see here, I will explain one by one. First, the concept of earth magnetic field is given by Sir William at in the year of 1600. He told us about the earth behavior like a huge magnet, and the base of this theory is given in front of you. So first base is that he said when we suspend a bar magnet freely with the help of thread, then the bar magnet, or you can say a magnet, will come at rest condition in a particular direction, which is north south direction. And if suppose we are disturbing this bar magnet once again, or 2 times, 3 times, or more time, it will again come to rest position in same direction, north south direction. And he conclude that on the basis of this evidence, it is possible only if the magnet is placed on the rotation axis of earth, such that the north pole of this magnet, or north pole of this earth magnetic field, is toward the geographical, see here, the north pole of this earth magnetic field is toward the geographical south, and the south pole of this magnetic field is toward the geographical north. Here S and N are the direction, or you can say the pole of earth magnetic field, which is considered as the conceptual, which is a conceptual thinking, or you can say fictitious magnet. And NM and SM are representing us about the north pole and south pole of the magnet, means bar magnet or magnetic needle. So here first point is clear. After that he said, when a soft iron core is buried under the surface of earth, and after some time when we take out, then we will see that this soft iron core attain the property of magnetic field, or you can say it has you can say it becomes magnetized, its behavior just like a magnet. So this is possible only if the axis of earth, or you can say the inside the earth, has some magnetic field. So after that, next point is that he told about the neutral points, which is out of the course, but the discussion is there, so that's why I have written the things in front of you. So neutral points are those points where the magnetic field of earth is neutralized by the magnetic field of magnet, or you can say both are equal, or if you can write here, you can say the magnetic field of the magnet is neutralized by the magnetic field of earth. So these type of points are called neutral points, and there are two different positions where we get the neutral points. Case number one, if the north pole of the magnet is toward the geographical south, that time the points will obtain on the axial line of the magnet. See in this diagram, here we have given the north pole of the magnet is toward the geographical north. So this is the second condition. So if the north pole of the magnet is toward the geographical north, that time the points which we are obtaining is in their equatorial line of this bar magnet, or you can say the magnet. So when you can once again, you can see, suppose this is a magnet, and when the north pole of the magnet is toward the geographical south,
suppose this is our geographical south, with the north pole of the magnet is toward the geographical south, that time the equatorial line of this magnet, at this equatorial line, on this equatorial line, all points are neutral points, or we get the neutral point on their equatorial line. On the other hand, when north is toward the south, we get in axial line. So after that, after the discussion or given the evidence, or you can say the evidence given by Sir William to explain the concept Earth behave like a huge magnet, causes of Earth magnetism. Now see, the first cause is, as we know that, given by Professor Brackett, as we know that Earth is rotating about their own axis, and we know that all matters are made up of by atoms, and atom contains ions, means charges, positive charge, negative charge. So when the Earth will start rotating about their own axis, all the charges which are present in the Earth will also rotate on their own axis, and when the charge will rotate on their own axis due to the rotation of Earth, so due to the motion of charge, or you can say the circulation of charge, an electric current is induced, and the behavior of Earth is just like a dipole. जैसा आपको पता है कि जब आपके पास अर्थ है, अर्थ में क्या है, आपके पास मैटर है, मैटर आपके पास किन से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आपका एटम्स, एटम्स में आपके पास चार्जेस होते हैं. तो जब आपके पास पूरा अर्थ रोटेशन करेगी अबाउट देयर ओन एक्सिस, तो जो अर्थ ये मानी है कि आपके पास उसमें चार्जेस से मिलकर बनी हुई है, तो जो चार्जेस है वो भी एक पर्टिकुलर आपके पास जो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके ही अलोंग आपके पास मोशन करेंगे. जब चार्जेस आपके पास मोशन करेंगे, तो चार्जेस के मोशन करने से आपके पास एक्सिस के अराउंड एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप बन जाएगा, क्योंकि आपके पास मोशन ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. तो जब चार्ज आपके पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम मोशन करे तो सर्कुलर लूप बन जाएगा. और आपको पता है जब सर्कुलेटिंग लूप बनेगा तो उस केस में आपके पास क्या होगा, एक चार्ज के फ्लो से एक करंट आपके पास कैरी हो जाएगी. क्योंकि आपको ये पता है कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन हमने डिस्कस करी थी, तो उस केस में हम ये भी बोलते थे कि मोशन, और यू कैन से द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ मैग्नेटिक मेटल और मैग्नेटिक सब्सटेंस ऑल्सो बिहेव लाइक अ इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो वही कंडीशन यहाँ पे भी है. अर्थ एक मैग्नेटिक एलिमेंट की तरह है, ठीक है, और उसमें क्या है कि उसके रोटेशन की वजह से उसमें जितने भी एटम्स और आयंस प्रेजेंट है वो भी क्या कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, ड्यू टू विच वो किसको जनरेट कर रहे हैं, करंट कैरिंग लूप को या सर्कुलर लूप को फॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पास उसका अर्थ का बिहेवियर है वो एक आपका मैग्नेटिक डाइपोल की तरह हो गया. और मैग्नेटिक डाइपोल में नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ पोल भी होगा. उसका मैग्नेटिक डाइपोल बिहेवियर की वजह से आपको पता है कि अर्थ ऑल्सो बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट, और यू कैन से ह्यूज बार मैग्नेट. क्लियर. नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट इन आउटर लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, आपको पता है कि आउटर लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ क्या है, आपके पास एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस हैं, और वो गैसेस सारी की सारी आपके पास क्या है, आयनाइज्ड कंडीशन में मिलेंगी आफ्टर लीविंग सम एक्सेप्शन. सो हियर यहाँ पे जो गैसेस मिलती हैं आयनाइज्ड कंडीशन में मिलती हैं, तो उन आयनाइज्ड कंडीशंस में क्या होते हैं, चार्ज्ड होते हैं, ठीक है, आयंस यानी चार्ज. तो जब आपके पास अर्थ का रोटेशन अबाउट देयर ओन एक्सिस होगा तो वो सारे के सारे जो आयंस हैं या चार्ज है वो भी रोटेशन करेंगे, और वो रोटेशन करते हुए सर्कुलर लूप्स, जो सेम कंडीशन में मैंने यहाँ बताया, वो सर्कुलर लूप फॉर्म करते हैं. और सर्कुलर लूप फॉर्म करने की वजह से आपके पास क्या होगा, वहां पे जो बिहेवियर ऑफ अर्थ है लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल हो जाता है. और मैग्नेटिक डाइपोल में आपको फिर बताऊं कि उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमने क्रिएट करे थे, होते हैं, ठीक है, और उसका बिहेवियर जो है लाइक अ बार मैग्नेट आपके पास हो जाए, ठीक है, और लाइक अ यू कैन से बार मैग्नेट बेसिकली. आफ्टर दैट सी नेक्स्ट वन इज दैट लास्ट जो इसमें जो कॉज दिया गया वो उन्होंने कहा कि कॉज जो आपके पास है कोर ऑफ अर्थ, अर्थ की अगर डीप इनसाइड द अर्थ हम चले जाएं तो वहां पे सारे के सारे जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो मिनरल्स, मेटल्स बेसिकली हम फोकस करें तो वो आपके पास मॉल्टन स्टेट में रहते हैं, हॉट एंड मॉल्टन स्टेट. जब हॉट एंड मॉल्टन स्टेट में रहेंगे तो जो उसमें आयरन और निकल, टू ऑफ द एग्जांपल हियर, जितने भी अलॉयज है मेटल्स, तो आयरन और निकल को अगर हम देखें तो ये भी आपके पास मॉल्टन स्टेट में रहेंगे. और ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ये आयरन लिक्विड का, आयरन और निकल का जो लिक्विड है आपके पास, ठीक है, जो वेरी हाई टेम्परेचर लिक्विड है,
तो वो लिक्विड भी आपके पास क्या करेगा, रोटेशन करेगा, और रोटेशन करते हुए उसमें जो प्रेजेंट आयंस और एटम्स है, बेसिकली आयंस और एटम्स, आयंस एटम्स जब मैं बोल रहा हूँ तो उसका मीनिंग चार्ज से आप समझिएगा। तो जो चार्जेस हैं वो भी आपके पास क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे और सर्कुलेटिंग पाथ पे मोशन करेंगे ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ एंड बिहेव लाइक अ सर्कुलर और फॉर्म, यू कैन से लाइक एंड फॉर्म सर्कुलर लूप आल्सो। तो सर्कुलर लूप की फिर वही कंडीशन कि वो आपके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, और मैग्नेटिक डाइपोल आपके पास यहाँ पे बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो अर्थ का ह्यूज मैग्नेटिज्म जो है वो हमें मिलता है। नेक्स्ट, अब इसके लिए इस कॉन्सेप्ट के बेस पे उन्होंने कुछ यहाँ पे आपका हाइपोथेसिस जो उन्होंने रखी है कि कोर ऑफ अर्थ वेरी एक्सट्रीमली हॉट होता है, तो उस वजह से ये सब चीजें होती है। तो उसके लिए कुछ उन्होंने एविडेंस दिए थे, या कुछ आप ये कह सकते थे बेस्ड ऑन दीज फैक्ट उन्होंने ये अपना हाइपोथेसिस रखा था। तो उन्होंने कहा कि जो मून है, मून के पास कोई भी आपके पास कोर में आपका मॉल्टन स्टेट नहीं होती है, वो कोल्ड रहता है, तो इसलिए मून पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं मिले। दूसरा आपके पास बताया था कि जो वीनस है, ठीक है, वीनस आपके पास है, उसकी जो रोटेशन रेट होती है वो क्या होती है, स्लोअर होती है। तो कॉज ऑफ दिस जो उसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो आपके पास क्या होगा, ड्यू टू रोटेशन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आपका क्या रहेगा, स्लोअर रेट का रहेगा या वीकर रहेगा। और तीसरा यहाँ पे वीनस के साथ जो आपका मरकरी एग्जांपल दिया हुआ, सॉरी जुपिटर का एग्जांपल दिया हुआ है, जुपिटर का जो रोटेशन रेट है वो क्या होता है, बहुत फास्टर होता है। कॉज ऑफ दिस उसके जितने भी आयंस और एटम्स होंगे वो भी बहुत फास्टर आपके पास रोटेशन करेंगे अबाउट देयर एक्सिस, और वो फास्टर मोशन करते 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 उसमें जो आपका करंट कैरिंग सर्कुलेटिंग लूप, आपका करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेवियर होगा। तो करंट का मोशन भी क्या होगा, फास्टर होगा, तो करंट भी आपके पास बहुत तेजी से रहेगी उसमें। तो उस वजह से आपके पास जुपिटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इंडक्शन आप ये कह सकते हो, ड्यू टू द रेट, और स्टेट एक्सपेरिमेंट में पता है कि करंट कैरिंग इंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, और जितनी ज्यादा करंट हम फ्लो करेंगे उतना ज्यादा आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आएगा। सो cause of this Jupiter has stronger magnetic field because of their faster rotation as compared to the other point। इसके तो ये कुछ यहाँ पे फैक्ट्स थे जिनके फैक्ट के बेस पे हम अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस कर सकते थे, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा अपनी फेयर नोटबुक में, और 3-4 बार जब रीड करेंगे तो आपको एक्चुअल जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक एलिमेंट्स। When we define the magnetic elements at a place, so we can write that the magnetic element at a place are the physical quantities, are the quantities which describe completely the magnitude as well as the direction of magnetic field of earth magnetic field, you can write, of earth magnetic field at that place. So here we have some magnetic elements like magnetic declination, magnetic inclination, or magnetic dip or dip angle. After that we talk here about the horizontal component of Earth's magnetic field. So first, one by one I will explain the all things. Before that, you can see the diagram here. I have drawn the diagram of Earth's magnetic field in which we will write here different terms. So see, first, as we know that Earth, basically you know in geography, Earth is inclined in their axis of rotation at an angle 11.3 degree. You know that 11.3 degree west. So the magnetic field अर्थ आपके पास क्या है, अपने जो एक्सिस पे है ना स्टूडेंट, वो कितना इंक्लाइंड हो रखी है, 11.3 डिग्री वेस्ट की तरफ इंक्लाइंड हो रखी है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो हमारे पास ये एस जी और एन जी आपके पास है, आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ है, और आपके पास क्योंकि प्रीवियस जो थ्योरीज हमने अभी डिस्कस करी थी उसके बेस पे अर्थ को हमने एक फिक्शनस मैग्नेट कंसीडर किया हुआ था फॉर कंसेप्चुअल थिंकिंग। तो उस केस में जो अर्थ का साउथ पोल है वो टुवर्ड द जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल था, और जो अर्थ का नॉर्थ पोल है वो टुवर्ड द जियोग्राफिकल साउथ बताया था आपको। और जब हम किसी मैग्नेट या बार मैग्नेट को, या कैसे आप कह सकते हो मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड करते हैं फ्रीली, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके आपके पास रुक जाती है। दैट डायरेक्शन इज कॉल्ड हियर magnetic north and magnetic south, which is at certain angle from the geographical north and geographical south. Point is clear? So the angle between the, you can say the line joining the north pole of magnet to south pole of magnet is called magnetic axis,
and the line joining the geographical south to geographical north is called our geographical axis. So here the angle between this and this is called our magnetic declination. I will write later on. So before this, see, तो आपको पता है कि यहाँ पे आपके पास नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक आपका जो मैग्नेट है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसका पोल ये है, साउथ वाला नॉर्थ की तरफ जियोग्राफिकल और नॉर्थ वाला साउथ की तरफ जियोग्राफिकल। और सपोज अगर हम थोड़ा सा इसके 11.3 डिग्री पे फोकस करें, तो अगर आप अपनी कंपास नीडल को रखते हैं, कंपास के थ्रू आप नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करते हैं, तो वो आपके पास 100% जियोग्राफिकल नॉर्थ या आपके पास जियोग्राफिकल साउथ डायरेक्शन आपको नहीं शो करेगा। आपको कितना डिफरेंस दिखाएगा? 11.3 डिग्री का डिफरेंस दिखाएगा। और अगर आप अपने कंपास नीडल के बेस पे इस डायरेक्शन पे जाएंगे, तो आप जो एक्चुअल जियोग्राफिकल नॉर्थ है उससे कितना 11.3 डिग्री आपका बेंड कर जाएंगे। और अगर आपको सेम उसी जियोग्राफिकल नॉर्थ पे जाना होगा, तो आप, बिकॉज ये आपका पहले से ही प्रिडिक्टेड है, इतना एंगल आपके पास अप्रोक्स बनता है अप्रोक्सीमेटली, तो आप अपने जो शिप को या अपने जो व्हीकल को 11.3 डिग्री आप टर्न करेंगे टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, तब जाके आप एक्चुअल जियोग्राफिकल नॉर्थ की कंडीशन में पहुंच पाएंगे। पॉइंट इज क्लियर? तो ये डिस्कशन था आपके पास, जो हमारे पास हम कंपास नीडल से डायरेक्शन शो करते हैं या डायरेक्शन देखते हैं, तो उसमें और एक्चुअल जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल साउथ के बीच में डिफरेंस। अब हमारे पास मेन कंडीशन क्या आती है? यहाँ पे अब देखिए डायग्राम पे हमारे पास कुछ टर्म्स बने हुए हैं। डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल की तरफ जाएगी, नॉर्थ से निकलेगी, साउथ की तरफ जाएगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं आपके पास, इसका डायग्राम कुछ ऐसे आपका बटरफ्लाई जो होता है, बटरफ्लाई के आपके पास, ठीक है, की तरह आपका डायग्राम शो हो रहा होगा। तो उस केस में देखिएगा आप, दूसरी चीज यहाँ पे जो हमारा मैग्नेट है, अर्थ का मैग्नेट है, ठीक है, अर्थ बिहेव लाइक ए ह्यूज मैग्नेट, तो अर्थ मैग्नेट है, उस अर्थ मैग्नेट का अपना एक एक्सिस होगा, ठीक है, यानी आपके पास अर्थ के मैग्नेट के परपेंडिकुलर आप एक सर्कुलर जो आपको दिख रहा होगा एक्सिस हमने ड्रॉ किया है, उसको बोलेंगे हम यहाँ पे मैग्नेटिक इक्वेटर। एंड सिमिलरली जो पोल है, पोल के रिस्पेक्ट में आपने यहाँ पे एक सर्कुलर ट्रैक आपने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, या आप ड्रॉ करेंगे तो उसको बोलेंगे हम यहाँ पे जियोग्राफिकल इक्वेटर। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ से जो अदर लाइंस आपके पास आ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है डायग्राम में। अब हमारा मेन कंसर्न क्या है कि अब आपका अर्थ रोटेट करेगी अबाउट देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, इसमें मैग्नेटिज्म होगा, अर्थ का अपना एक मैग्नेटिज्म होगा, हमें पता है। अब डिफरेंट हम यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स। अब सबसे पहला पॉइंट आप ये देखिएगा, जब हम बात करेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की, आपको मैंने बताया कि अगर हम किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें, ठीक है, अगर ये सपोज हमारे पास मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं, तो ये आपके पास मैग्नेट का हो जाएगा नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। अगर आप उसको इस फॉर्मेट में ना दिखा के सिंपल भी आप दिखा सकते हैं अगर दिखाना चाहें, अदरवाइज ठीक है, आप इसे इसी फॉर्मेट में रखिए। अब आपके पास क्या है, ये जो आपके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल है मैग्नेट का, ये आपका जियोग्राफिकल एक्सिस के यहाँ पे क्या कर रखा है आपने, हैंग कर रखा है, ठीक है। तो ये जो है जियोग्राफिकल एक्सिस के जो नॉर्थ और साउथ है आपके पास पोल NG और SG, जैसे कि आपका डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। तो ये NM जो है SG से क्या है आपके पास कितना एंगल बनाएगा, जो जियोग्राफिकल है उससे जितना एंगल सपोज हमने लेट कर लिया, थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, तो दैट थीटा एंगल इज कॉल्ड अ magnetic declination. So here the magnetic declination is the angle between the magnetic axis. See this diagram, in this diagram ये जो आपके पास dotted line यहाँ पे है, this is called our magnetic axis, and the second one, this is line, this one is the line, is called our geographical axis. The angle between the magnetic axis and geographical axis is called our angle of declination. Clear? So here when we talk about the definition of angle of declination, ठीक है, और magnetic declination in term of magnetic meridian and
जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो उससे पहले हम इनको मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन को स्टडी कर देते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन आर नथिंग बट दे आर द वर्टिकल प्लेन्स lie on magnetic axis and geographical axis। मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिकल एक्सिस पे जो वर्टिकल प्लेन लाई कर रहे हैं, जैसे आप मेरी कॉपी पे देख सकते हैं, ये मेरा जियोग्राफिकल एक्सिस है, इस पे जो वर्टिकल प्लेन है वो आपके पास हो गया जियोग्राफिकल मेरिडियन, और इस पे जो आपके पास वर्टिकल प्लेन हो गया वो आपके पास हो गया स्टूडेंट, see here, this plane is called our magnetic meridian। So we can write the definition of magnetic declination in the term of magnetic meridian and geographical meridian also। So as you know that in my first definition, the angle between the magnetic axis and geographical axis, suppose this is our magnetic axis and this one is our geographical axis, from this diagram, and the angle between them is called our magnetic declination, theta। And see here, if I will complete this diagram in the term of meridian, so if I will draw a plane on the base of this magnetic axis, so this plane is called our magnetic meridian, perpendicular plane। And on the other hand, when I will draw a plane on this geographical axis, so the plane is called a geographical meridian। This is our geographical meridian, and this one is our magnetic meridian। Point is clear? So I am erasing the remaining part which is useless for this diagram. So this, if you want to write here you can, otherwise ignore it। So this is the diagram in which we are seeing that this is our geographical meridian and this one is our magnetic meridian, and you know that initially theta is the angle between the geographical axis and magnetic axis। So in term of meridian I can also define this, value। So here in term of meridian I can also define the angle between magnetic meridian and geographical meridian is called angle of declination। Listen carefully, this is our angle of declination। Now here the remaining part of this magnetic elements. Now see here student, the horizontal of magnetic meridian is denoted by H symbol, and now we are talking, because we are talking here now about the angle of dip or magnetic dip, or you can say magnetic inclination। So that time the magnetic inclination is the angle between the strength, or you can say the intensity, total strength of the magnetic field of earth, and the horizontal of, or you can say the horizontal direction of magnetic meridian। So in the other way, if we want to define this, the next point is magnetic dip or dip angle, or you can say magnetic inclination, it is noted by del। The angle between the total strength of magnetic field of earth to the horizontal component
component or you can say horizontal direction of magnetic मेरिडियन। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझते हैं। पहले तो बाय डेफिनेशन आपको दिखा दिया, इट इज नोटेड बाय डेल, इट इज डिनोटेड बाय डेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, जैसे हम आपका किसी मैग्नेटिक कंपास को सस्पेंड करते हैं, तो मैग्नेटिक कंपास को जब सस्पेंड करते हैं तो आप देखते होंगे कि विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो क्या होता है, आपके पास हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बेंड हो जाता है, यानी आपका डाउनवर्ड चला जाता है। ठीक है, तो उसकी जो एंगल कुछ क्रिएट करता है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे H जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट करेगा, तो उससे कुछ एंगल डाउन हो जाता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो आपके पास डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट होती है, डेल की वैल्यू। ठीक है, जो आपके पास मैग्नेटिक डिप होता है। सो सी इन द डायग्राम, इफ सपोज यहाँ पे आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास एंटर कर रही है। सपोज एट दिस पॉइंट आई एम टेकिंग अ प्लेस, सपोज किसी एक पॉइंट पे, किसी एक प्लेस पे, यहाँ पे अगर हम देखें जो लाइन है हमने टेंजेंट इस पे ड्रॉ करा हुआ है, ठीक है, प्लेन है, और इस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट एन एंगल थीटा यहाँ पे इंक्लाइंड हो रहा है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बनाएं तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट, ठीक है, तो वो आपके पास कितनी होगी, बी है, और वो कितना एंगल बना रही है, यहाँ से थीटा एंगल बना रही है इस पे, जो हमने यहाँ पे एक प्लेस पे जो स्ट्रिप लिया हुआ है उसको यहाँ पे इलाज करके आपको दिख रहा है। तो थीटा एंगल अगर ये ड्रॉ कर रहा है तो उस केस में इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, आपको पता है बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इसका एक वर्टिकल हो जाएगा बी वी। इसको अगर वेक्टरली आगे बढ़ाएं तो इसकी कंडीशन कुछ ऐसी होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम यहाँ वेक्टर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, तो इसको डायरेक्टली वैसे ही आपको समझा रहा हूँ कि इसको हम बी एच और बी वी इस डायरेक्शन में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि आपके पास इसके दो कंपोनेंट होंगे, इसको बोलेंगे बी कॉस थीटा। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो थीटा है ना स्टूडेंट, ये थीटा नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे डेल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपके पास मैग्नेटिक डिप की। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो डेल एंगल बन रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक डिप इज द एंगल विच मेक्स बिटवीन the total strength of magnetic field and the horizontal component of magnetic field, or you can say the horizontal direction of the magnetic meridian। ठीक है, तो इसके बीच में यहाँ पे b cos डेल बन जाएगा और b भी हो जाएगा b sin डेल। तो ये सब कंडीशन बनेगी। अब ऐसा ही हम कोई दूसरा पॉइंट भी कंसीडर कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे हमने कोई स्ट्रिप ले लिया और इस केस में अगर हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड जा रही हैं, तो उस पर ड्रॉ किया गया हमने टेंजेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएगा, और ये थीटा है, इसके दो कंपोनेंट सेम बनेंगे बी एच और बी वी, जिनकी वैल्यू आप सेम लिख लेंगे। ठीक है, बी कॉस डेल और बी साइन डेल, यहाँ पे फिर हम थीटा लिख के, ठीक है, डेल लिखेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अब इस केस में देखें कि यहाँ पे एंगल क्या होगा बाय डेफिनेशन इन दोनों के बिटवीन, जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक डिप। ठीक है, अब इस वैल्यू जो आपके पास मैग्नेटिक डिप की वैल्यू, ये ओरिएंटेशन ऑफ अर्थ दिखाता है। इसका सिग्निफिकेशन जो इसका सिग्निफिकेंस है ये आपके पास ओरिएंटेशन ऑफ अर्थ के बारे में बताएगा एट दैट पॉइंट। तो अब इसके बाद क्या है, आपके पास कंडीशन हम ले लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन एट इक्वेटर। अगर इक्वेटर के बारे में बात करें, मैग्नेटिक इक्वेटर्स के बारे में बात करें, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ नॉर्थ और साउथ पोल का, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपके पास ऐसे इमर्ज हो रही हैं, और जो हम फ्रॉम द गिवन डायग्राम अगर मैग्नेटिक इक्वेटर का डायग्राम बनाएं, यू कैन सी, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। और इस पॉइंट पे अगर आप यहाँ पे देखें, इस पे जो स्ट्रिप हमने जैसे यहाँ ड्रॉ की गई थी वहां पे वैसे हमने यहाँ ड्रॉ करी है। इस पे जो डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दिस पॉइंट। तो उनके बीच में आपके पास क्या बनेगा, जो एंगल है, या फ्रॉम द गिवन डायग्राम बी और एच के बीच में दिखा रहे हैं, तो जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, डिप एंगल। डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री हो जाएगी। तो इन केस ऑफ इक्वेटर अगर डेल की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा आपके पास, बी एच इज इक्वल टू बी कॉस डेल, इसकी वैल्यू 0 cos 0 1, तो बी एच इज इक्वल टू बी हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, साइन 0 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो इस केस में आपका क्या होगा कि जो निडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास है विल बी पैरेलल टू द हॉरिजन। तो हॉरिजन की क्या होगी, पैरेलल डायरेक्शन में आपके पास
वो आपका लाई आ जाएगी या पैरेलल डायरेक्शन में आपके पास आ जाएगी जो डायरेक्शन होगी, ठीक है। और या आप ये कह सकते हैं कि जो निडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास है वो सरफेस जो है आपके पास एट इक्वेटर इट विल बी पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ, इट विल बी पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन अलग हो जाएगी, सरफेस ऑफ अर्थ। नाउ इफ वी थिंक अबाउट द केस ऑफ पोल्स, तो अब आप यहाँ देखिए पोल्स में अगर आप इस पोजीशन को देखते हैं तो पोल्स में जो फील्ड लाइंस आ रही हैं ये क्या है, नॉर्मली इसमें फॉलो हो रही है। अगर इसका प्रॉपर डायग्राम आप देखेंगे तो ये यहीं से इमर्ज हो रही है और यहीं से नॉर्मली फॉलो हो रही है। तो पोल्स वाली कंडीशन में जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं और यहाँ पे हम एक स्ट्रिप अगर ड्रॉ करें इस डायग्राम के बेस पे, तो उस केस में ये एंगल जो है, ये थीटा एंगल जो है या डेल एंगल जो है, सॉरी डेल एंगल जो है ये क्या हो जाएगा आपके पास वर्टिकल हो जाएगा, मींस 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इस केस में, ठीक है स्टूडेंट। तो इन केस ऑफ वर्टिकल, ठीक है, तो जो आपके पास डेल की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी पोल्स में आपके पास 90 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो जब 90 डिग्री आपके पास पोल की कंडीशन में होगी तो आप यही चीज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। आप देखेंगे आपके पास क्या वैल्यू मिलती है इन केस ऑफ पोल। सो यू कैन सी हियर इन केस ऑफ पोल, इन केस ऑफ पोल्स और मैग्नेटिक पोल्स भी कह सकते हैं, एट पोल्स इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। सो डेल इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो बी एच कंपोनेंट आपके पास कॉस डेल की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बी एच आपका 0 हो जाएगा और जो बी वी है वो आपका बी साइन थीटा हो जाएगा, साइन 90 हो जाएगा डेल की जगह और ये बी की वैल्यू आ जाएगी, तो बी वी इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा। तो इस केस में जो आपके पास है आपका कंडीशन क्या रहेगी कि जो आपकी निडल है इट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ऐसा डायग्राम मिलेगा और इन दोनों कंडीशन के डायग्राम आपके पास एट पोल्स में और एट इक्वेटर में उनकी क्या पोजीशन होगी तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ आफ्टर दैट वी टॉक हियर अबाउट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लास्ट वन, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने पहले भी डिस्कस कर दिया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है क्या, ठीक है। उसको एक बार फिर से हम यहाँ पे बाय डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। सो फॉर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। Now student, we will discuss here about the next one, which is horizontal component of Earth's magnetic field। तो इसको देखें बाय डेफिनेशन आपको पता होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, द कंपोनेंट इस H को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सही है, इसको H भी दिखा सकते हैं या बेसिकली BH से रिप्रेजेंट कर देंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। तो इसको बोलेंगे द कंपोनेंट ऑफ, बाय डेफिनेशन द कंपोनेंट ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड along the horizontal axis of magnetic meridian is called what? Horizontal component of earth magnetic field, earth magnetic field डिनोटेड बाय BH और समवेयर H, ठीक है। कभी इसे BH से भी नोट कर सकते हैं और H से भी नोट कर सकते हैं फ्रॉम द गिवन डायग्राम। अब इसमें से हम थोड़ा सा एक रिलेशन निकाल देते हैं वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। एज आई टोल्ड यू दिस इज अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस वन इज अ वर्टिकल कंपोनेंट, सो इट इज नोटेड बाय सपोज VV, या हो सकता है कि कहीं पे इसे V से रिप्रेजेंट भी किया गया हो, ठीक है, जैसे इसे VH या B से रिप्रेजेंट किया। तो सपोज यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ, लेट BH, VB are horizontal component and vertical component of total strength, or you can say the intensity of magnetic field of earth, ठीक है। तो उस केस में स्टूडेंट डायग्राम पे आप देख रहे हैं तो इसमें आप BH की वैल्यू को क्या लिखेंगे, B cos del, ठीक है, इन टर्म ऑफ एंगल ऑफ टिप,
एंड बी वी इज इक्वल्स टू हो जाएगा बी साइन डेल। ये दो वैल्यूज हो गई। इसको या तो हो सकता है कहीं पे आप एच से भी रिप्रेजेंट कर दो, कहीं पे वी से भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिलहाल अभी मैं यहाँ पे बी एच और बी वी से रिप्रेजेंट करूंगा। फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, अब इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर एंड सम करो। ठीक है, बाय स्क्वायर एंड सम of these two equation you will get the magnitude of the total intensity of magnetic field of earth which will be डायरेक्ट कर सकते हैं bh स्क्वायर bb स्क्वायर। क्लियर, इसका स्क्वायर करिए b स्क्वायर cos स्क्वायर डेल b स्क्वायर sin स्क्वायर डेल cos स्क्वायर डेल sin स्क्वायर डेल 1 हो जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी आपका bh स्क्वायर प्लस bb स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल intensity of earth magnetic field at that point. And if we think about tan del means the value of del, or you can say the direction of total intensity of magnetic field at that point. Clear? So for that, divide this equation by this equation. Tan means when we divide by dividing, you can add one thing, second by first. So we can write here b sin del upon b, it is equals to tan del is equal to bv upon bh. So this is the value of tan del, or if you want to write del, so you can write tan inverse bv upon bh. तो ये छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं सब न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, तो उन न्यूमेरिकल पोर्शंस पे ये सब वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी मैग्नेटिक एलिमेंट्स थे इनका डिस्कसिंग कंप्लीट हो गया है। तो एक बार इस सारे टॉपिक्स को आप क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। और अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये थ्योरेटिकल पोर्शन था और अंडरस्टैंडिंग पोर्शन था, इसको 2-3 बार रिपीट करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा, तब जाके आपको ये सब समझ में आएगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो फॉर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।